रिलायंस का अगर हम चार्ट देखते हैं तो पिछले कई सालों में इसने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को पिछले करीबन 5 साल में उतना अच्छा मुनाफा नहीं दिया है। अगर टेक्निकल बात करते हैं तो अगर रिलायंस को बाय करना है तो मैं 1140 की राह देखूंगा। अगर ये स्टॉक 1140 के ऊपर मुझे दिखाई देता है क्लोजिंग बेसिस पर, तो ही मैं इसमें निवेश करने की सलाह दूंगा अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो। अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म ट्रेड की बात करते हैं तो मैं मानता हूं कि ये स्टॉक करीबन 1040 तक नीचे आता है तो हम यहाँ पे बाय करने की अपॉर्चुनिटी रखते हैं। अभी जो फिलहाल चालू है 1076 से लेके 1040 के बीच में एक्यूमुलेट करना चाहिए। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वापस 1100 तक के चार्ट के ऊपर लक्ष्य दिखाई दे सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, एक शेयर देखिए आशीष, आप ही देखें टेक्निकली इसका चार्ट, वो है ड्यूक ऑफशोर, बीएसई में लिस्टेड कंपनी है ये, और इसको एक ऑर्डर मिला है और ऑर्डर इसको हाई स्पीड क्रू बोट और ड्यूक कमांड के लिए इनको ये ऑर्डर दिया गया है। ये कितना चलने वाला है, क्योंकि आज खुलेगा तो ठीक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके बाद कितना चलेगा एक बार ये बताएं आप। इसका कल का क्लोजिंग अगर देखते हैं तो करीबन 82.75 का कल का क्लोजिंग है। मैं मानता हूँ कि आज थोड़ा अगर इस न्यूज़ की वजह से गैप अप ओपन भी होता है तो भी ये स्टॉक मैं मानता हूँ कि करीबन 87 तक जाने की संभावना है। अगर ये 87 को क्रॉस करता है तो अगला जो लेवल चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है वो है 93 का। तो मैं मानता हूँ कि यहाँ पे नई खरीदारी करने की सलाह फिलहाल नहीं दूंगा। अगर ओपनिंग के बाद इसको देखना चाहिए। अगर ये हमें 86 के अंदर मिलता है तो नए निवेशक यहाँ पे निवेश कर सकते हैं 91-92 के टारगेट्स के लिए। जी चलिए बात करते हैं जीएसटी की, क्योंकि फाइनली कल की बैठक में जीएसटी पर जो डुअल कंट्रोल को लेकर जो डेडलॉक बना हुआ था वो एंड हुआ, और उसी पर अब बातचीत करने के लिए मिस्टर थॉमस आइजैक हमारे साथ मौजूद हैं, एफएम केरला। मिस्टर आइजैक, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जी बिजनेस। तो फाइनली कहेंगे कि कल की जो जीएसटी की बैठक रही वो फाइनली फ्रूटफुल रही है, और जो भी इश्यूज थे Okay. Mr. Isaac, would you say that this is fair? This is a fairly fruitful GST meeting yesterday, and now we can say that there is a consensus regarding dual control and the date being July 1? Yes, this is a broad consensus. Of course, there are differences of opinion. I would like more changes in favor of the states, but states themselves are divided on that. Therefore, I think it's a best consensus that we can arrive at. Mr. Thomas, one thing I just want to clear from your end. Do you believe the 1st July is a date where the government is also ready, industry is also ready, and we are also looking for the fruitful and the, we can say, the clear GST roadmap? There is no hurdle in that. We would have been more comfortable across September 1st. But anyway, we were preparing to roll it in April 1st. Therefore, July is a realistic date. You see, the law is ready. Now we have to, major task remaining is the classification of commodities and services by tax rate. Then there are rules to be framed, training given to people. So all this can go simultaneously. It is not serially done. So if you make a major effort, definitely by July 1st we can roll it in. True. But Mr. Isaac, as you mentioned right now, that basic structure of the law has been agreed upon, but there is whole lot of procedures that has to be finalized before July 1. So do you think that this duration till July 1 will be enough to streamline things, or it may push the apply date to further? No, it's a very tight timeline. But if we are going to GST, better go it early itself, but revenues for the current year are not affected. Okay. Because, everybody knows we are going to have a new system change. Therefore, VAT everybody is going to be relaxed and so on. And then if GST gets delayed very much, it will affect the tax revenue. So even if it is a bit rough and puts a lot of burden on others, on everybody, it is best to have it July 1st. Okay. Well, one last question, Mr. Isaac. Though assigning each of the GST rate to a particular category is going to be a difficult thing, but when we will know this category assignment, what do you think? I think definitely by March, we have to be ready. Okay. Because then
some public opinions will have to be taken in. So draft should be ready by March, and April, yes, and May training given. And so I think by March end that task should be done. Mr. Thomas, last question to you. Do you believe there is any hurdle or any point which is point to be a difference with the central government as a state finance minister? Yes, I am very, very, very unhappy with the system of cess that Centre is contemplating. It's a very bad idea. Now the cess is non-matable. So right from the birth of the GST, you have introduced something non-matable. So we had confined to the cess to 4 items. Okay, aberration. Now the thinking seems to be that can be a generalized phenomena to cess over GST commodities. That's very bad. Centre for compensation should find alternative source of money rather than tracing it through cess. ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया सर समय देने के लिए। थोड़े सिस्टम को लेकर उनको लगता है कि ज़्यादा बेहतर तरीके से थोड़ी और पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी रखी जा सकती थी, लेकिन फिर भी जो भी हो रहा है कम से कम एक अच्छी चीज़ ये हो रही है कि सितंबर की डेट हमको नहीं मिल रही, 1 जुलाई की डेट है। कल जब हम वित्त मंत्री का बयान सुन रहे तो एक बात और समझ में आई कि इंडस्ट्री भी को थोड़ा और जल्दी और तैयार होना होगा, क्योंकि उनके लिए भी एक सरप्राइजिंग फैक्टर है, क्योंकि अभी तक सिस्टम में यही बात थी कि शायद हो सकता है सितंबर तक चला जाए, लेकिन मामला वापस 1 जुलाई पे आकर रुक गया है। तो अब इंडस्ट्री को भी थोड़ा सा जल्दी से यहाँ पे काम करना होगा। के सुब्रमण्यम इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी एक बार व्यू लेते हैं। सुब्रा, आज GST को लेकर जो भी डेट आई है और मिनिस्टर ने जो भी बात कही है और FM को भी हमने सुना, उससे ये तो समझ में आ रहा है कि जो सेक्टर GST से जुड़े हुए हैं किसी वजह से रुक गए थे, शायद वापस आज चल जाएंगे। आप क्या राय दे रहे हैं उन पर्टिकुलर सेक्टर्स में? 2 सेक्टर तो सब जानते हैं, एक तो लॉजिस्टिक और दूसरा वाइट गुड्स। मॉर्निंग बिम्बी, मेरा मानना है कि शायद ये एक काफ़ी एक वेलकम फैक्टर है, जहाँ पर हमने इसको एक इम्प्लीमेंटेशन की तरफ यहाँ पर एक पुश दी जा रही है, और ख़ास करके जहाँ पर ऑलरेडी मार्केट में इतनी एक अपेक्षा थी कि शायद ये जितना जल्दी रोल आउट होवे उतना मार्केट के लिए भी अच्छा है और ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए भी अच्छी है। तो ऑब्वियसली जैसे आपने बताया यहाँ पर लॉजिस्टिक्स, वाइट गुड्स, ये सब में काफ़ी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आने के एक पॉसिबिलिटी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए। लेकिन मेरा मानना है कि शायद यहाँ पर भी काउंटर्स गिने चुने, आई थिंक जहाँ पर अभी भी अट्रैक्टिव लगे वहाँ पर ध्यान लेना है। जैसे अगर हम लॉजिस्टिक्स की बात करें तो शायद एजिस लॉजिस्टिक्स, और अगर हम वाइट गुड्स की बात करें तो शायद एक जो जाने माने हैवेल्स, वोल्टास, ये सब जो काउंटर्स जो एक शायद एक करेक्शन मोड पे थे, लेकिन वापस एक मोमेंटम आने की पूरी संभावना है। तो आई थिंक अच्छी एक यहाँ पर डिसीजन है, और मेरा मानना है कि शायद जैसे आपने बताया अच्छी बूस्ट है, ऐसे ये सब बेनिफिशियरीज काफ़ी रहेंगे, और आने वाले टाइम पे आई थिंक इसका सब पूरा असर हम पॉजिटिव असर हम इकोनॉमी पे भी देखने को मिल पाएंगे। जी, लेकिन अब फटाफट से ये जान लेते हैं कि कौन से वो चुनिंदा शेयर्स हैं जो कि आज आप इंट्राडे में ट्रेड के लिहाज से चुन सकते हैं, यानी ट्रेडिंग कॉल्स लेकर पूजा मौजूद है हमारे साथ, उनके पास चलते हैं और आज के टॉप 10 ट्रेड्स जान लेते हैं। बताइए पूजा, कौन से स्टॉक्स है जहां पर खरीदारी की सलाह या फिर बिकवाली की सलाह दी जा रही है इंट्राडे के लिहाज से? गुड मॉर्निंग। आज शुरुआत सिमी भौमिक की कॉल से करते हैं। इनका फोकस आज ऑटो स्टॉक्स पर काफ़ी ज़्यादा है। एस्कॉर्ट्स में इन्होंने खरीदारी करने की राय दी है गिरावट में, और इनका मानना है कि 372 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा कॉल भी एक ऑटो स्टॉक में ही है, TVS मोटर में इन्होंने खरीदारी करने की राय दी है। 380 379 के लेवल्स देखने को 385 392 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं स्टॉक पे, और 378 का स्टॉप लॉस आकर चलने की राय होगी। पुष्कर राज कायतकर ने SBI में खरीदारी की राय दी है। इन स्टॉक पे इनका मानना है कि 268 के लेवल्स देखने की उम्मीद है, 249 का स्टॉप लॉस आकर चलने की राय होगी। और दूसरे कॉल में इन्होंने बिकवाली की राय दी है इन्फोसिस में। कल भी स्टॉक में कमजोरी थी और कमजोरी बरकरार रहने का अनुमान है। 922 के लेवल्स तक गिरावट देखने की उम्मीद है स्टॉक में। 975 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय होगी। IDBI कैपिटल के AK प्रभाकर ने बजाज फाइनेंस में बाय कॉल दिया है 960 के टारगेट के लिए, 902 का स्टॉप लॉस की राय दी है। और यहाँ पर मौजूदा लेवल से
से 4% तक का रिटर्न ये स्टॉक आपको दिखा सकता है इंट्राडे में। और इसके अलावा फिनोलेक्स इंडस्ट्री में भी बाय कॉल दिया है, 463 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं इस काउंटर में। चंदन तापड़िया ने अरविंद में भी बाय कॉल दिया है, 390 के लेवल्स के लिए 4% का रिटर्न स्टॉक में देखने की उम्मीद है, 367 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय होगी। और वोल्टास में बाय कॉल दिया है, 360 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, 337 का स्टॉप लॉस की राय दी जा रही है। और आखिर में चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगाड़िया ने मनप्पुरम फाइनेंस में बाय कॉल दिया है, 84 का टारगेट देखने की उम्मीद है स्टॉक में, यानी कि इंट्राडे में ही करीब 7% से ज़्यादा का रिटर्न ये स्टॉक आपको कमा के दिखा सकता है। और आखिरी में स्नोमैन लॉजिस्टिक्स में बाय कॉल दे रहे हैं, 65 का लेवल से स्टॉक में देखने की उम्मीद है और 56 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय दे रहे हैं।